Hello students, in the previous lecture we were discussing factorization based on identity a square minus b square. Let's solve some more questions. First question, 4a square minus bracket 4b square plus 4bc plus c square. So beta, in this question we want to represent our statement in the form of a square minus b square. Suppose this is my a square term. So I want to represent this as a whole square. These three terms I want to write in the whole square term. Now see carefully, in the bracket the square terms are 4b square and c square. So I am writing first of all the square terms and the product term b and c in the last. Now see, now this 4b square can be written as 2b whole square. Yes. So next is c square. Now this is a square, this is b square, here is 4bc, sorry. So this 4bc I can write like 2 into this 2b into this c. Now see what I have done. First of all, I have written the square terms first, then this product of b and c in the end. Now I am writing this as the whole square, 2b whole square plus c square plus 4bc को स्प्लिट कर रही हूँ बेटा 2ab में. 2ab मतलब यहाँ पे ये मैं a ले रही हूँ, ये b ले रही हूँ. थ्री टर्म्स हैं, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, this one is a, this is b, this is b. Now you can cross check. अगर आप 2b का स्क्वायर करते हो तो we will get 4b square. अगर c स्क्वायर का करते हो तो we will get this 2 into 2b, that will be 4b into c. So this term can be written as 2b whole square plus c square plus 2, this a term, this b term. So how can write this? What is this formula? A square plus b square plus 2ab. What is this? A square plus b square plus 2ab. This is equal to a plus b whole square. So what is our a here? 2b. 2b is the a. What is b? b is the c. Now I have written this term in the bracket as whole square. पहले ये अलग अलग का सेपरेट का स्क्वायर था, अब ये बन गया होल स्क्वायर. अब देखो बेटा 4a स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं 2a होल स्क्वायर माइनस 2b प्लस c होल स्क्वायर. अब हम अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. कैसे? ये बन गया हमारा a. बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास यहाँ पे होल स्क्वायर हो, होल स्क्वायर की फॉर्म में हो, और फर्स्ट टर्म भी होल स्क्वायर की फॉर्म में. पहले यहाँ पे सेपरेट स्क्वायर्स थे. तो वी हैव कन्वर्टेड दिस टर्म लाइक 2b प्लस c स्क्वायर. तो अब ये टर्म हमारी a है, ये दोनों टर्म्स मिलके हमारी b बना रही हैं. सो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. b में हमारे दो टर्म्स हैं हमारे पास. So I can write a. I have told you earlier also, अगर मेरे पास b में दो टर्म्स है तो मैं उनको ब्रैकेट में लिखूंगी a प्लस b, a प्लस दिस टर्म b इंटू a माइनस 2b प्लस c, दिस a term minus this b term. Now we will solve further. Let's open this. 2a plus 2b plus c into, now this negative sign will change the signs of the bracket, 2a minus 2b minus c. This is the answer. So what we have done in this question, first of all, convert this bracket into a whole square term.
then apply the formula a square minus b square. When you have a और b स्क्वायर लाइक दो आपके पास a या b में दो टर्म्स मिलके बन रही हैं, तो आप उसको ब्रैकेट में लिखो यहाँ पे. क्यों लिखना है? क्योंकि बेटा ये नेगेटिव साइन है ना, जो ये इनके साइंस चेंज कर देता है. अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो साइन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी. सो दिस वाज द क्वेश्चन. लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. So this is the statement 4a square minus 12a plus 9 minus 49b square. बेटा सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन में हम देखते हैं कि how many terms are there in our question. तो यहाँ पे we have 1, 2, 3 and 4 terms. Second step is there anything common in all the 4? No, there is nothing common जो चारों में हो. Third step, पहले हम काउंट करते हैं टर्म्स, देन हम देखते हैं कुछ कॉमन है. थर्ड स्टेप हमारा आता है कि कुछ कंबाइन होता है तो उनको कंबाइन करते हैं. अगर ये 4 है तो पहले तो हम देखते हैं कि क्या 2 में कंबाइन होता है. इस केस में बेटा 2 में कंबाइन नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे a वेरिएबल है, a स्क्वायर है, यहाँ पे a है. अगर आप इनको भी कंबाइन करते हो तो फिर बाकी ये दो बचे. इसमें b है बट इसमें b नहीं है. So you have done some question based on trinomial. Trinomial कैसा था? Like ax square plus bx plus c, जिसमें एक वेरिएबल था x, उसकी पावर 2 होती थी, मिडल में x पावर 1, देन कांस्टेंट टर्म. तो ये ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स जिसमें फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर 2, देन वेरिएबल की पावर 1, देन कांस्टेंट. सो ये केस बेटा वैसा नहीं है. हियर द वेरिएबल इज a, पावर हियर इज 2, मिडल टर्म वेरिएबल इज a, पावर इज 1, दिस इज द कांस्टेंट. सो हियर वी आर कंबाइनिंग द फर्स्ट 3 and we are separating the last term. Now what is this? How can I write this? Now बेटा 9 को हम लिख सकते हैं, I am writing this like this. This can be written as 2a whole square. 9 can be written as 3 whole square. अब इसको मैं 2ab की फॉर्म में बनाऊंगी. ये a स्क्वायर बन गया, ये चीज़ हमने 2a होल स्क्वायर बना दी, ये वाली चीज़ 3 स्क्वायर बना दी. नाउ दिस इज माइनस. अब इस 12a को हमने 2ab की फॉर्म में लिखना है. दिस इज a, दिस इज b. आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक. जब आपने 4a स्क्वायर को 2a होल स्क्वायर लिखा, 9 को 3 होल स्क्वायर लिखा, 12a को कैसे स्प्लिट किया? 2ab की फॉर्म में. 2 व्हाट इज a? a इज 2a, व्हाट इज b? 3. क्रॉस चेक करो. 2a होल स्क्वायर इज 4a स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 2 इंटू 4, 4 इंटू 3 12, 12a. नाउ 49b स्क्वायर कैन बी रिटन एज 7b होल स्क्वायर. अब बेटा ये किसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ap. आई एम राइटिंग हियर इन द साइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर. इस क्वेश्चन में हमारे पास a क्या है? दिस इज a. 2a, b क्या है? 3 होल स्क्वायर. नाउ दिस 7b होल स्क्वायर. अब देखो बेटा हमारे पास अब ये फर्स्ट ब्रैकेट का होल स्क्वायर, नाउ सेकंड ब्रैकेट का होल स्क्वायर. अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं. ये सो यूजिंग a प्लस b, ये सारा a है, ये b है, इंटू a, ये सारी टर्म a है, माइनस b. सो दिस इज द आंसर. लेट्स see once again what we have done. First of all, combine 3 terms to make it a trinomial. Now I have written 4a square as 2a whole square and 9 as 3 square, 12a as minus 2, 2a into 3. So this has become 2a
-3 whole square minus 7b whole square. Then apply the formula a square minus b square. That will be a plus b into a minus b. Now let's take one more question. Now see carefully. The statement is 4xy minus x square minus 4y square plus z square. First of all, we will see how many variables are there in the question. The variable is x, y and z. तो ये जो प्रोडक्ट टर्म है इसमें बेटा कौन से वेरिएबल्स हैं? वी हैव वेरिएबल्स इन दिस प्रोडक्ट टर्म x and y. So this xy term will be combined with these three. प्रोडक्ट टर्म के साथ ये एक्स वाई वाले वेरिएबल वाली टर्म्स ही कंबाइन होंगी. जेड स्क्वेयर वी विल राइट सेपरेट. तो बेटा ये तो स्क्वेयर के साथ नेगेटिव है, हम वो वाली टर्म पहले लेंगे जिसमें स्क्वेयर के साथ पॉजिटिव है. सो प्रेफरेबली आई एम राइटिंग एज जेड स्क्वेयर. अब मैं लिख रही हूँ माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर, ये प्लस 4xy है. आई हैव जस्ट rearrange the terms. What I have done, ये 4xy वाली जो टर्म है वो x स्क्वेयर और y स्क्वेयर के साथ कंबाइन होगी. तो ये z स्क्वेयर सेपरेट लिखेंगे. z स्क्वेयर के साथ पॉजिटिव साइन है तो प्रेफरेबली आई विल राइट इट फर्स्ट, देन आई विल राइट द अदर टर्म्स. ना बेटा z स्क्वेयर, यहाँ से मैं x स्क्वेयर और y स्क्वेयर वाली टर्म्स को पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव बाहर ले रही हूँ. सो इनसाइड ब्रैकेट all the signs of these three terms will be changed. So x square will become positive plus 4y square plus this plus will become negative here minus 4xy. अब इसको भी हम थ्री टर्म्स हैं इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे. z स्क्वायर माइनस दिस इज x स्क्वायर. 4y स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर में? 2y होल स्क्वायर. नो माइनस इस 4xy को हमने ब्रेक करना है 2ab की फॉर्म में. माइनस 2a यहाँ से लो, a इज x, b इज दिस, b इज 2y. यू कैन क्रॉस चेक कि इसको अगर सॉल्व करें तो ऊपर वाली चीज़ ही बनती है x स्क्वायर, 2y होल स्क्वायर इज 4y स्क्वायर, 2 into 2 4xy है. सो दिस वन इज करेक्ट. नो बेटा व्हाट इज दिस? a स्क्वायर plus b square minus 2ab. I am writing here a square plus b square minus 2ab is again a minus b whole square. तो इस ये सारी तीन टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं? x minus 2y whole square. अब हमारा पूरा क्वेश्चन फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर बन गया. तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस दिस इज बी स्क्वायर. सो नाउ वी विल राइट हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो ए इज जेड. सो ए क्योंकि बी में दो टर्म्स हैं तो आई एम राइटिंग दिस इन द ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू ए माइनस b. Now we will open the brackets. Z plus x minus 2y into z minus x. This minus minus plus will become plus. So this is the answer. So let's see what we have done. We have just rearranged the terms first. जो xy वेरिएबल प्रोडक्ट में आ रहा है उसको x स्क्वायर y स्क्वायर वाली टर्म्स के साथ ही लिखेंगे और ये वाली सेपरेट रहेगी. सो दिस टर्म कैन बी रिटन एज x माइनस 2y होल स्क्वायर. नाउ दिस इज आर a, दिस इज आर b. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, द फॉर्मूला विल बी a प्लस b इंटू a माइनस b. सिमिलरली once we have one more question, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2cd. तो देखो बेटा कितने वेरिएबल्स हैं a b c d. तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको किसके साथ कंबाइन करेंगे? जहाँ पे ए बी प्रोडक्ट टर्म है दिस. सो दिस 2ab विल बी कंबाइंड विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर एंड दिस इज द प्रोडक्ट टर्म सी डी. तो दैट मीन्स दिस 2cd will be combined with this c square and d square.
सो अगेन प्रेफरेबली मैं वो स्क्वायर टर्म्स पहले लिखूंगी जो पॉजिटिव है। तो माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर नेगेटिव है, तो मैं पॉजिटिव स्क्वायर्स पहले लिख रही हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में 2a भी कंबाइन कर रही हूँ, प्लस 2ab। अब बेटा सी स्क्वायर और डी स्क्वायर में स्क्वायर टर्म्स हमेशा हमें पॉजिटिव में चाहिए होती है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आई एम टेकिंग दिस नेगेटिव आउटसाइड। तो अंदर इन तीनों को कंबाइन करो। आप जब कंबाइन करोगे तो साइन तीनों के नेगेटिव थे। व्हेन यू हैव टेकन नेगेटिव आउटसाइड ऑल दीज थ्री बिकम पॉजिटिव। नाउ सी व्हाट इज दिस, a square plus b square plus 2ab, दिस इज a plus b होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd, ये भी वही चीज़ है जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। So this will be c plus d whole square. So here we have this one bracket square whole square minus this bracket whole square. तो हम a minus a square minus b square का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये पूरा हमारा a है, this is our b. So दो टर्म्स है, I am taking in the bracket a, this term is a plus this term is b into a माइनस बी। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। हमारा ए ये था तो यहाँ पे ए लिख दिया, प्लस बी, ये टर्म हमारी बी है, इंटू ए माइनस बी। सो नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हियर ए प्लस बी minus c minus d is the answer. So this was one type of factorization.